Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with journal entries. आज अपने ये वाले यूनिट में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे which is accounting for GST. So, let us first understand a few basic concepts relating to GST. So, what exactly is GST? GST is Goods and Services Tax. This tax is levied on supply of goods and services. So whenever there is a supply of goods and services, GST is levied on supply of goods and services. So the tax is goods and services tax. जीएसटी के टाइप्स जीएसटी के टाइप्स क्या क्या है? जीएसटी के टाइप्स, हम लोग कभी ना कभी एज अ कंज्यूमर जीएसटी पे किया है, किया है? करते हैं। बिल में जीएसटी देखते हैं, राइट? इनवॉइस में जीएसटी देखते हैं। सो टेल मी द जीएसटी विच यू हैव सीन इन द बिल इनवॉइस। CGST, what is the full form for CGST? Central Goods and Services Tax. Then हाँ, जिधर CGST दिखेगा उधर SGST भी साथ में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि दोनों अकेला अकेला दिखाई देता है। CGST जिस बिल में है साथ में SGST. SGST stands for State Goods and Services Tax. एंड अगर यूनियन टेरिटरी हुआ तो स्टेट के जगह, तो इट इज यूनियन टेरिटरी, UTGST. यूनियन टेरिटरी GST, UTGST. क्लियर? एंड IGST. So what are the types of GST? IGST, CGST, SGST, UTGST. IGST अलग है। कैसे अलग है डिस्कस करेंगे। CGST, SGST दोनों साथ में लगाया जाता है। स्टेट के जगह अगर यूनियन टेरिटरी हुआ तो इन प्लेस ऑफ SGST इट इज UTGST. तो स्टेट के जगह UTGST। हाँ, CGST तो जिधर SGST या UTGST है CGST रहेगा। स्टेट हुआ तो CGST के साथ SGST। स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो CGST के साथ UTGST. अब ये जो टाइप ऑफ GST लेवी होता है ये डिपेंड करता है whether the supply is an interstate supply or intra-state supply. सप्लाई क्या चीज का हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। इंटरस्टेट सप्लाई मींस व्हाट? Excellent. It is supply between two states. Say, for example, supply of goods and services from Maharashtra to Gujarat, Punjab to Bihar. So, supply between two states is interstate supply. So, interstate supply के केस में which GST is levied? IGST. IGST stands for integrated GST. What is intra-state supply? Within the same state. Supply of goods and services within the same state. For example, supply of goods and services from Kolkata to Durgapur in West Bengal. दोनों किधर है? West Bengal में. Same state, supply within the same state, so it is intra-state supply. And intra-state supply के केस में
Which GST is levied? CGST, which is central GST, SGST, which is state GST. तो सीजीएसटी के साथ हमेशा एसजीएसटी अगर स्टेट हुआ तो, अदरवाइज अगर यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, दैट इज यूटी जीएसटी. सो कॉम्बो क्या बना? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी व्हेन देयर इज अ स्टेट, यानी सप्लाई विद इन द सेम स्टेट. CGST plus SGST. If the supply is within the same union territory, it will be CGST plus UTGST. Okay, clear. So GST कितने टाइप के? 4 टाइप के. IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी, CGST, सेंट्रल जीएसटी, SGST, स्टेट जीएसटी, UTGST, यूनियन टेरिटरी जीएसटी. ये कब लगाए जाते हैं? इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, when the supply of goods and services is between two different states, IGST is levied. Whereas in case of intra-state supply, when the supply is within the same state or within the same union territory, it is intra-state supply. So we levy CGST plus SGST in case of within the same state. Otherwise, if the supply is within the same union territory, it is CGST plus UTGST. So GST is levied on supply. Now let us discuss what are the types of supply. There are two types of supply: inward and outward. Inward supply means what? You are receiving the supply or giving the supply? Receiving the supply. Inward, intake of supply, receiving the supply. Outward means giving the supply, right? When supply of goods and services are given. तो ध्यान से, inward supply means intake, receiving supply of goods and services, यानी जब अपने सप्लाई को लेते हैं, रिसीव करते हैं. तो सप्लाई को लेना मतलब कैसे ले सकते हैं सप्लाई को? फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज रॉ मटेरियल्स और वी परचेज मशीनरी. So these are basically what? Input to our business. तो इनवर्ड सप्लाई के केस में जो जीएसटी लेवी होता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी. विल डिस्कस. ठीक है. सो इनटेक ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे? जब अपने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं. कैसे? जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स या परचेज ऑफ मशीनरी. सो वी आर टेकिंग द सप्लाई, receiving the supply, getting the supply, intake of supply. So it is inward supply. Inward supply is with respect to all the inputs. जैसे purchase of raw material is input to our business. So GST levied on inward supply is called input GST. ठीक है. तो input GST, that is input, IGST input, CGST input, SGST input, UTGST. We'll discuss with the examples. Output supply, giving the supply, means the business entity is the supplier of goods and services. For example, in case of sale of goods, so the business entity is supplying, giving away.
supply of goods and services, given example sale of goods. So this is basically output. इनपुट आउटपुट समझते ना, इनपुट मतलब बिजनेस में आना, आउटपुट मतलब बिजनेस से जाना। तो बिजनेस में अगर सप्लाई आ रहा है तो इनवर्ट इनपुट जीएसटी, बिजनेस अगर सप्लाई जा रहा है यानी सप्लाई दे रहा है बिजनेस, तो आउटवर्ड सप्लाई आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी दैट इज आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट यूटीजीएसटी. Now let us discuss with the example. You will help me with the example, right? The first example is, ध्यान से सुनो, देखना मत आंसर. Mr. A of Kolkata, you'll not read the entire thing, just the first sentence. Mr. A of Kolkata purchases goods from Mr. B of Durgapur. Now, question and answer. Mr. A is of Kolkata and Mr. B is of Durgapur. They are within the same state or different state? Same state, West Bengal. So this supply is interstate supply or intra-state supply? Intra-state supply. तो intra-state supply के केस में the type of GST which is levied is CGST with SGST. Okay. So in this case, Mr. A of Kolkata is purchasing goods from Mr. B of Durgapur. तो Mr. A के लिए this supply is inward supply or outward supply? For Mr. A, this supply is inward supply or outward supply? Inward supply. So GST paid by Mr. A is input GST. So input CGST plus input SGST. For Mr. B, who is a supplier, who is giving the supply, this supply is an outward supply. For Mr. B, the GST is output. The same GST is output CGST plus output SGST. Clear है? Yes, no? Next, example 2. Discuss. Mr. C of Punjab supplies goods to Mr. D of Bihar. So this supply is within the same state or different states? Two different states. So supply is interstate or intrastate? Interstate. So type of GST is IGST. So Mr. C के लिए the supply is inward supply or outward supply? Outward supply. Why? Because Mr. C is making the supply. And Mr. D के लिए this is inward supply because Mr. D is receiving the supply. Clear? तो Mr. C के लिए this is outward supply. So GST is output GST. कौन सा GST? Output. Very good. Output IGST. And Mr. D के लिए this is inward supply, तो input IGST. Perfect. Now let us understand the fundamentals of accounting for GST. Very easy. क्या हो रहा है? Fundamentals of accounting for GST very easy to understand. ठीक है, इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, समझते हैं, पहले समझते हैं. जैसे एक्सपेंसेस के केस में, एक्सपेंसेस के केस में द बिजनेस एंटिटी इज receiving the supply or giving the supply? Expenses के केस में the business entity is getting the supply or giving the supply? Receiving the supply, because वो expense कर रहे हैं, तो business entity is getting the supply, receiving the supply. So expenses के केस में supply is inward supply or outward supply? Inward supply because receiving the supply. Inward supply, so GST will be input GST.
ठीक है, तो फंडा इज वेरी सिंपल। बिजनेस में जब भी कुछ सप्लाई आ रहा है, इनवर्ड सप्लाई, एक्सपेंसेस के केस में business is receiving the supply of goods and services, so inward supply, and the GST is input GST for the business. Now tell me, what is the modern rule of debit and credit for expenses? Modern rule of debit and credit for expenses. Expenses increase debit, तो ध्यान से, expenses increase debit, तो इनपुट जीएसटी भी डेबिट, बिकॉज जो इनपुट जीएसटी वो एक्सपेंसेस के पीछे पीछे आ रहा है। इनपुट जीएसटी एक्सपेंसेस के पीछे पीछे आ रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस इज इनवर्ड सप्लाई, तो सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी एक्सपेंसेस के साथ साथ चल रहा है। तो अगर अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करना है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, तो जब अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे हैं इनपुट जीएसटी को भी क्या करोगे, डेबिट। एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट, तो इनपुट जीएसटी विल बी क्रेडिटेड। तो फिक्स करो, फिक्स इन योर माइंड, एक्सपेंसेस इनवर्ड सप्लाई इनपुट जीएसटी, एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहे इनपुट जीएसटी डेबिट, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर रहे इनपुट जीएसटी क्रेडिट। क्लियर? अभी जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर ए ऑफ कोलकाता, अभी हम लोग मिस्टर ए के बुक्स में, किसके बुक्स में, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ सिलीगुड़ी, सेम स्टेट, व्हाट हैपेंड, सेम स्टेट वेस्ट बंगाल, सो द सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई, सो जीएसटी इज करेक्ट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। हम लोग किसके बुक्स में, मिस्टर ए के बुक्स में। ए क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ए इज रिसीविंग द सप्लाई और गिविंग सप्लाई, receiving the supply, so supply is inward or outward, inward supply, so inward supply to input, so input SGST, input CGST. Purchase of goods is what, expense, yes or no, purchase of goods is what, expense, expense हो रहा है, परचेज कर रहे तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज कर रहे हैं, 10,000, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000। अब क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट किया तो इसके साथ साथ इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करना है, सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट इज 9%, 10,000 का 9% इज 900, सो व्हाट इज द जर्नल entry to record this transaction? Purchases account debit 10,000, because the goods which are purchased are worth rupees 10,000. So purchases account 10,000, purchases account debit 10,000 because 10,000 का goods purchase हुए। Purchases expense, expenses को डेबिट करें तो इसके साथ साथ इनपुट सीजीएसटी को डेबिट, इनपुट आईजी इनपुट सीजीएसटी को डेबिट, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट। नाउ टेल मी, जो गुड्स परचेज किया उसका अमाउंट कितना है, 10,000, इसमें इनपुट सीजीएसटी कितना है, 9%, 10,000 का 900, input SGST also 9%, 900. So what is the total amount which Mr. A will be liable to pay to Mr. B
अगेंस्ट द बिल 11,800, बिकॉज मिस्टर बी जो बिल रेज करेगा टैक्स इनवॉइस विथ जीएसटी will be for rupees 11,800. So Mr. A is liable to pay to Mr. B 11,800. Mr. B is creditor, liability increase, credit 11,800. So to Mr. P account, creditor account 11,800. Clear है? इनकम, इनकम कब होता है? जब अपने जब बिजनेस एंटिटी सप्लाई करता है या सप्लाई रिसीव करता है? When business entity is making the supply or receiving the supply? Making the supply. So that supply is what? Outward supply or inward supply? Outward supply. So income arises whenever there is an outward supply, right? So income arises whenever there is an outward supply. And in case of outward supply, the GST is called output GST. Now, income के case में what is the rule of debit and credit? Income इंक्रीज क्रेडिट, तो आउटपुट जीएसटी को भी क्या करोगे? क्रेडिट. यानी इनकम डेबिट तो आउटपुट जीएसटी भी डेबिट. तो इनकम के साथ जो करोगे वही सेम आउटपुट जीएसटी के साथ करना है, राइट? बिकॉज जिधर इनकम है तो वो आउटवर्ड सप्लाई के कारण, तो आउटपुट जीएसटी को इनकम के साथ ही डेबिट क्रेडिट करेंगे. सो क्या फंडा सीखा आपने? इनकम इंक्रीज क्रेडिट, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट. इनकम डिक्रीज डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट. क्लियर है? पक्का? तो अभी एग्जाम्पल, मिस्टर ए ऑफ कोलकाता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी ऑफ सिलीगुड़ी फॉर रुपीज 12,000, एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%. तो सेम स्टेट सप्लाई इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, जीएसटी इज एसजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. हम लोग किसके बुक्स में? मिस्टर ए. हियर मिस्टर ए इज सेलिंग गुड्स, तो मिस्टर ए इज making the supply. Mr. A is a supplier. So the supply is outward supply. तो outward supply तो output CGST plus output SGST. Right? तो इसको रिकॉर्ड कैसे करें? मिस्टर ए सेल कर रहा है, इनकम है, इंक्रीज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 बिकॉज 12,000 का गुड सेल किया. टू सेल को क्रेडिट कर रहे, इनकम क्रेडिट तो आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट. तो अगर अपने सेल्स क्रेडिट करें टू सेल्स अकाउंट 12,002, इसके साथ आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा 99%. 12,000 का 9% इज 1,080, 1,080. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर विच मिस्टर ए विल मेक द टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस वो कितना अमाउंट का बनाएगा? 12,000 plus 1,080 plus 1,080 is 14,160. So Mr. A will make a tax invoice of 14,160 which he shall receive from Mr. D. So it is receivable from Mr. D. Mr. D is debtor, asset, increase, debit. So debtor Mr. D account. Debit 14,160. So what is the journal? Mr. D account debit 14,160 to sales account 12,000 to output CGST account 1,080 to output SGST account 1,080. Clear है? Will you answer my question now? Sales के केस में when you are recording a sale, आपको बताना है आंसर क्या करना है. आपको आंसर कैसे करना है? इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे वो बताना.
सो अपने को आंसर कैसे करना है, इनपुट या आउटपुट जीएसटी को डेबिट करना है क्रेडिट करना है वो बताना। तो सेल के केस में क्या होगा, व्हाट, तो पूरा बताओ। सेल के केस में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न के केस में, परचेजेस के केस में, परचेजेस रिटर्न के केस में। क्लियर है, बस, डन। ओके, सो सेल्स के केस में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी डेबिट। व्हाई, बिकॉज सेल्स रिटर्न इनकम डिक्रीज डेबिट, आउटपुट जीएसटी। परचेजेस रिटर्न के केस में, सॉरी, परचेजेस के केस में इनपुट जीएसटी डेबिट, परचेजेस रिटर्न के केस में इनपुट जीएसटी क्रेडिट, परचेजेस रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, सो इनपुट जीएसटी क्रेडिट। क्लियर है? सो this is all we need to understand for accounting for GST, right? Now we are in a position that we can solve illustrations from institute's study material. Ready? So illustration 8, illustration 8 करें? Will you help me with the illustrations? No? Yes. Okay. Journalize. Journalize the following transaction in the books of Mr. Rohit. Page number 2.37. Illustration 8. Journalize the following transaction in the books of Mr. Rohit. Roman 1. Purchased goods from Sahil for rupees 50,000 plus CGST, SGST at the rate of 9%. Now tell me how will you record this? Purchase कर रहे हैं, expense increase debit. So purchases account debit. Purchases expense inward supply. So input CGST, input SGST. Purchases को डेबिट कर रहे हैं तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट. 2. Sahil account. The amount is payable to Sahil. Creditor liability increase credit. So what is a journal entry? Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Sahil account for the total amount. Clear? लिखो. मैं एक ट्रिक समझाऊं, एक ट्रिक बताऊं कि नहीं बताऊं? मैं बताता हूं. जैसे परचेज हुआ, सिंपल परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट विदाउट जीएसटी. तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैं जब क्लास 11 में मैंने ये सीखा था, ऑब्वियस सा बात है जब मैं क्लास 11 में था तब जीएसटी नहीं आया था. जस्ट टेलिंग यू टू एक्सप्लेन. तो मैं क्लास 11 के स्टूडेंट को कैसे समझाता कि विदाउट जीएसटी पहले एंट्री बना लो, विच इज इजी. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट, राइट? क्लियर? परचेजेस एक्सपेंस इनवर्ड सप्लाई, तो इनपुट एक्सपेंसेस के केस में हमेशा इनपुट जीएसटी. एक्सपेंसेस को आपने क्या किया? डेबिट.
तो इनपुट जीएसटी को भी डेबिट। तो इससे कभी कोई मिस्टेक होगा ही नहीं। परचेजेस 50,000 का किया, जीएसटी का रेट इज 9%, 50,000 का 9% इज 4,900। यानी साहिल ने कितना का टैक्स इनवॉइस रेज किया होगा विथ जीएसटी? 59,000। सो 59,000 इज पेबल टू साहिल। ओके, being goods purchased from Sahil. Then next, purchased goods from Sam. Oh, for rupees 40,000 at a trade discount of 10%. ट्रेड डिस्काउंट को देखते ही पहले क्या करना है? माइनस, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई जर्नल नहीं होता है। सो ट्रेड डिस्काउंट को देखते पहले अमाउंट से लेस करके नेट अमाउंट का जर्नल पास करना है। तो 40,000 का 10% इज 4,000, माइनस करके 36,000। क्लियर है? सो परचेज 36,000 के गुड्स का हुआ, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। यस और नो? ओके, हाँ, 36,000 का 99% होगा। सो क्या होगा बोलो? परचेजेस अकाउंट, सुनो, फर्स्ट लिसन, बिकॉज कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, फाउंडेशन चल रहा है। सम को सॉल्व इस सेकेंड, मतलब सम को लिखने वाला काम है सेकेंडरी, पहले समझना है। क्लियर ना? कंसेप्ट को सुनना है। अब बोले नहीं मैं समझ गया, नहीं समझे? समझ गया फिर भी सुनो, तो जितने बार सुनेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर रिवीजन में अपना टाइम बचेगा। समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर भी सुनो, बी पेशेंट। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000, परचेजेस एक्सपेंस इनवर्ड सप्लाई डेबिट, इंक्रीज डेबिट। सो परचेजेस डेबिट हुआ तो साथ में इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 का 9% इज हाउ मच? कैलकुलेट। 3240, 3240। So input CGST account debit 3240, input SGST account debit 3240. So total कितना का इनवॉइस बना होगा? 36,000 plus 3240 plus 3240. How much? 42,480। आगे नहीं पढ़ रहे, अभी रुक जाओ, यहां तक करते, आगे पढ़ के डिस्कस करके करेंगे, डू नॉट वरी, लिखो मेरे साथ अब। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000 ऑलवेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इसके साथ साथ पीछे पीछे कौन चलाएगा? इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 36,000 का 9% इज हाउ मच? 3240, 3240। तो बताओ, जो परचेज किया इसका बिल टैक्स इनवॉइस कितना का बना? 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 कितना हो रहा है? 48,480, 42,480। यस और नो? नेक्स्ट आगे रीड कर रहे हैं। सो 42,480 का हमने टैक्स इनवॉइस बना। ₹20,000 was paid immediately. ₹20,000 was paid immediately. Paid immediately means cash or bank. We prefer bank. The bank asset decrease credit. So to bank 20,000. What is the balance amount after 20,000 has been paid?
Correct. 42,480 minus 20,000 is 22,480. So 22,480, the balance payable after 3 months. The balance is outstanding to be paid to Sam. To be paid to Sam. It's a liability towards Sam. Liability increase credit to Sam account credit. Okay. Next. Goods costing rupees 20,000 withdrawn for personal use. रुक जाओ. विदाउट जीएसटी इसका एंट्री बताओ. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 withdrawn फॉर पर्सनल यूज विदाउट जीएसटी एंट्री बताओ. पर्सनल यूज मींस व्हाट? विच अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड? ड्राइंग्स अकाउंट. एंड गुड्स विड्रॉ हुआ है तो विच अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड? गुड्स के साथ परचेजेस अकाउंट, बिकॉज ये गुड्स विड्रॉ जो किया है, ये कौन सा गुड्स है जो परचेज परचेज होके रखा हुआ है. सो ये परचेज किया हुआ गुड्स को प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल रहा है. सो कौन सा दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, ये जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट वाई? ड्रॉइंग्स इज प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल अकाउंट. ड्रॉइंग्स करने से प्रोप्राइटर का कैपिटल डिक्रीज, डेबिट, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. देन परचेज किया हुआ गुड्स को प्रोप्राइटर बिजनेस में से निकाल रहा है, तो बिजनेस में परचेज किया हुआ गुड्स कम हो जा रहा है. परचेजेस एक्सपेंस डिक्रीज, कम हो रहा है, क्रेडिट. सो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट. सो विदाउट जीएसटी, सुनना, ट्रिक, स्मार्ट वर्क. विदाउट जीएसटी द एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. अब पहले मेरे को करने दो, हाँ, बिकॉज ये पूरा अपने को इधर में कोई रेस में नहीं भागना. अपने को इधर में अपना फाउंडेशन, जब बिल्डिंग का फाउंडेशन बन रहा है तो वर्कर्स हड़बड़ा नहीं सकते. यूर अंडरस्टैंडिंग ना? अदरवाइज बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा ना. है. सो विदाउट जीएसटी द एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. रुक जाओ, मैं लिखने के लिए बोलूंगा. सो द एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये समझ में आ गया. अब इधर में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंसेस है परचेज, क्रेडिट हो रहा है. तो इसके साथ साथ बोलो, इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा. परचेजेस एक्सपेंस क्रेडिट होता है, तो इसके साथ साथ एक्सपेंसेस के साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट. सो टू इनपुट, बोलो, सीजीएसटी टू इनपुट. अब अमाउंट कैसे पुट करें, इसका भी एक स्ट्रैटेजी है. जो गुड्स विड्रॉ किया है उसका अमाउंट कितना है? 20,000. एंड जीएसटी का रेट कितना है? 9%. हम्म. सीजीएसटी एसजी का रेट हमेशा एक ही होगा. सो 20,000 का 9% इज हाउ मच? 1,800. सो बोलो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना से करें? है 23,600. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 23,600. दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. क्लियर है?
Okay. Next, paid rent to Gagandeep for rupees 30,000. Rent paid का entry is class 11. Rent account debit to cash. Rent account debit to cash. Rent expense डेबिट कर रहे हैं, इंक्रीज डेबिट, तो एक्सपेंस के साथ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा. यस. विदाउट जीएसटी एंट्री इज रेंट टू कैश, रेंट एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो साथ में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी रेंट के साथ डेबिट. तो बोलो, नाउ द फाइनल एंट्री. रेंट अकाउंट डेबिट. रेंट कितने का है? व्हाट इज अमाउंट ऑफ रेंट? 30,000. रेंट अमाउंट इज 30,000, तो एक्सपेंस 30,000. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. रेट बताओ. 6%. सो 30,000 का 6% इज 1,800. श्योर? यस. ओके. तो दिस रेंट हैज बीन पेड इन कैश, so to cash account. So with GST, what is the amount? 33,600. Next, goods costing rupees 5,000 before trade discount of 10% return to Sam. सैम के साथ पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? सैम से गुड्स परचेज किया था, अभी उसको रिटर्न कर रहे हैं. सो दिस इज परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न कितने का हो रहा है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. तो ट्रेड डिस्काउंट को देखते हैं, सबसे पहले उसको माइनस करके नेट अमाउंट का एंट्री पास करेंगे. 5,000 माइनस 10% ऑफ 5,000 इज 4,500. तो परचेजेस रिटर्न 4,500 के गुड्स का हुआ है. विदाउट जीएसटी एंट्री बताओ. सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न. सो टू परचेजेस रिटर्न हो रहा है, परचेजेस रिटर्न एक्सपेंस डिक्रीज होता है, क्रेडिट. तो साथ में परचेजेस रिटर्न जो क्रेडिट हो रहा है उसके साथ में इनपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट. क्लियर? तो एंट्री क्या बना? सैम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. रेट इज 9%. परचेजेस के टाइम जो रेट लगा था वही तो परचेजेस रिटर्न के टाइम भी रेट लगेगा ना. वेरी लॉजिकल. परचेजेस रिटर्न 4,500 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो इस पर 9% इज 405. 5,310. 5,310. क्लियर है? नेक्स्ट. परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 44,800 इंक्लूडिंग
IGST at the rate of 12%. So can I say that IGST ka amount is included in 44,800? So 44,800 is inclusive of 12%. So what is the amount of furniture purchased without GST? कैसे निकालोगे? बाप रे. How will you apply? Absolutely correct. 44,800 by 112 into 100 is coming to how much? 40,000. So 40,000 is the amount of furniture purchased. So जो furniture purchase हुआ है without GST, it is 40,000 का furniture purchased. तो 4,800 क्या है? 4,800 furniture का amount नहीं है. 4,800 is IGST का amount. अच्छा, इधर में furniture purchase किए, तो दिस सप्लाई इज इनवर्ट और आउटवर्ट सप्लाई. इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई के केस में इनपुट आईजीएसटी. फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है तो उसके साथ में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट? 44,800 divided by 112 into 100, coming to how much? 40,000. Furniture account debit, input IGST account debit 4,800 to, बोलो, to क्या? To cash, to bank, what do we prefer? To cash, to bank. So to bank is how much? Obviously na. So furniture account debit 40,000, input IGST account debit 4,800, to bank 44,800. 7. Purchased machinery. So purchase of machinery is what? Inward supply or outward supply? Inward supply. So inward supply, so input CGST, input SGST. Machinery purchased, तो machinery asset increase debit, तो साथ में input CGST debit, input SGST debit. तो entry is machinery account debit 1,40,000, input CGST account debit 1,40,000 का 9%, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,40,000 का 9%. क्लियर? यहां तक करते हैं, बाकी पेड, पेड वाला स्टेटमेंट डिस्कस करते, पहले यहां तक करते हैं. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1,40,000. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,40,000 का 9%. अच्छा, हाँ, 12,600. हाउ? 49 इज 126. ठीक है. More than accounts, we are involved in doing mental calculation, mental maths. स्कूल में करते थे ना mental maths? नहीं करता? Which book you followed for mental maths? We used to follow Shakuntala Devi mental maths.
You know Shakuntala Devi? She's a good mathematician. Very nice. So we used to follow Mental Mathematics by Shakuntala Devi. So मशीन जो परचेज किया इसका टैक्स इनवॉइस कितना का बना इंक्लूडिंग जीएसटी? 1,40,000 प्लस 12,600 प्लस 12,600 इज हाउ मच? फटाफट बताओ। 1,65,200। जो मशीन अपने परचेज के इसका टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज 1,65,200। सो 1,65,200 इज पेबल फॉर परचेज ऑफ मशीन टू मेसर सिम्फनी इंडस्ट्रीज, जिसमें से 1 लाख पेड इमीडिएटली. So to bank 1 lakh and the balance, how much? 65,200 to be paid after 2 months. So to be paid means liability, increase credit. To be paid to whom? Symphony Industries. So credit में क्या होगा? To bank 1 lakh, to Symphony Industries 65,200. Clear है? To bank 1 lakh. Being machinery purchased and 1 lakh paid and balance to be paid after 2 months. बट इतना लिखना है एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है? नो. सो व्हाट डू वी राइट फॉर द एग्जाम इन द एग्जाम? बीइंग मशीनरी परचेज बस. ठीक है. डन विद दिस क्वेश्चन. सो दिस टॉपिक इज एज सच easy to understand and solve questions. Coming to the next question. Coming to the next question. Question illustration 9. Ready? Illustration 9. Generalize the following transactions in the books of Miss Nidhi Traders, July 2022, page 2.39. Now July 3 को क्या हुआ है? Sold goods for rupees 50,000. Charge CGST and SGST at the rate of 6% each. So tell me the entry. Goods को सेल किया है. कौन से पार्टी को सेल किया? पार्टी का नाम मेंशन नहीं है. पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो वी शैल टेक इट एज अ कैश सेल. अदरवाइज अगर क्रेडिट सेल होता तो जिस पार्टी को, जिस कस्टमर को, जिस डेटर को बेचता हो तो उसका नाम दिया हुआ होता. Since party का नाम is name is not mentioned, so we shall take it as a cash sale where the amount is received in bank. Debtor नहीं होगा because party का नाम is not mentioned. So what will be the entry? Bank account debit to sales account to output CGST to output SGST. Clear है? Sale income outward supply, सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो साथ में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट. कंफ्यूजन जब भी हो हमेशा विदाउट जीएसटी एंट्री को बनाओ. बोलो. एंड देन जीएसटी का इफेक्ट डाल दो उस एंट्री में, और क्या. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स कितना का हुआ है? 50,000 का. जीएसटी रेट इज 6%. 50,000 का 6% इज 3,000.
सो टैक्स इनवॉइस कितना का बनाया? 56,000, तो बैंक में 56,000 रिसीव किया। क्लियर है, इंक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट आ जाओ। सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग CGST and SGST at the rate of 6% each। यानी ये जो 28,000 है, दिस इज इंक्लूडिंग CGST and SGST। CGST 6%, SGST 6%, तो total GST is 12%। So this 28,000 includes CGST plus SGST is equal to 6 plus 6 is equal to 12% का GST। So before GST, without GST, the amount of sales made is how much? What is the amount of goods sold? Tell me. Again, unitary method, 28,000 by 112। 112 कैसे? 12% का तो GST है। 6 plus 6, so 100 plus 12 is 112 into 100। What is the amount coming to? 25,000। तो goods which are sold is of 25,000। 25,000 का गुड्स हमने बेचा, तो क्या एंट्री होगा बोलो? सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000 टू आउटपुट CGST 1,500 टू आउटपुट SGST 1,500। मैंने पता है 6% कैलकुलेट नहीं किया। मैंने 1,500 कैसे निकाला बोले तो? 28,000 माइनस 25,000 इज 3,000 एंड CGST SGST को दोनों का सेम अमाउंट है, हाफ ऑफ कर दिया। So July 4, the entry is Surjit account debit 28,000 to sales account 25,000 to output CGST 1,500 to output SGST। ঠিক আছে। Next received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of rupees 28,000। So difference क्या चीज का है? It is what? Discount what? Allowed or received? Allowed। So सुरजीत से रिसीव करना था 28,000, बट कितना रिसीव किया? अगेंस्ट 28,000 वी हैव रिसीव्ड 25,200 इन फुल सेटलमेंट। यानी इसके बाद सुरजीत का अकाउंट विल गेट क्लोज्ड, no more amount will be received from Surjit, so difference shall be treated as discount allowed, which is an expense for the business। So what is the entry that we pass for this? Bank account debit 25,200, discount allowed account debit 2,800 to Surjit account 28,000। Yes, no? Okay. In July 5. So bank account debit
25, 200, discount allowed account debit, 2,800 to Surjit account. Okays. Next. Come to the next. July 6, sold goods to Kapil for rupees 30,000, charged IGST at the rate of 12%. तो कपिल को गुड्स क्या किए? सेल, सेल कितना का गुड्स किया? 30,000 टू सेल्स अकाउंट, 30,000 टू आईजीएसटी, टू व्हाट आईजीएसटी आउटपुट, टू सेल्स अकाउंट 30,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 30,000 का 12% इज हाउ मच? 30,000 का 12% is 3,600. So to sales account 30,000 to output IGST 3,600. तो इनवॉइस कितना का रेज हुआ? 33,600, जिसमें से received 12,000 immediately. So bank account debit 12,000. Balance, what is the balance amount? 33,600 minus 12,000 is 21,600 to be received. Receivable, asset, Kapil, debtor, asset increase. To be received from Kapil, Kapil debtor, asset increase debit. So Kapil account debit 21,600. तो क्या एंट्री बना अपना? बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, Kapil account debit 21,600, to sales account 30,000, to output IGST 3,600. Clear? Tell me the date. July 6. 30,000 का गुड्स सेल हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट 30,000, सेल इनकम आउटवर्ड सप्लाई, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो आउटवर्ड सप्लाई के साथ आउटपुट आईजीएसटी भी, सेल्स के साथ आउटपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट. व्हाट इज द रेट? 12%. 30,000 का 12% इज 3,600. यानी टैक्स इनवॉइस कितना का रेज हुआ? 33,600, out of which 12,000 has been received, bank account debit 12,000, and the balance difference कितना रहे? 33,600 minus 12,000 is 21,600 to be received. Receivable किससे? Kapil से. So Kapil is a debtor, asset increase debit. Right. Now the next one. July 10, very important. Aha. Kapil was allowed rebate. कपिल को इससे पहले जुलाई 6 को क्या किए थे? सेल. कपिल को सेल किया ना अभी, जस्ट इसके एंट्री पास किए जुलाई 6 को. कपिल वाज अलाउड रिबेट. रिबेट मींस छूट, कम कर दिया उसका पैसा. क्यों? व्हाई? व्हाट हैपेंड? एज द गुड्स सप्लाइड टू हिम वर डिफेक्टिव. दिस इज नॉट डिस्काउंट अलाउड. लिसन टू मी. नो, नो, दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न ऑल्सो. व्हाट इज दिस? दिस इज छूट की कपिल को जो गुड्स पहुंचा था वो थोड़ा सा डिफेक्टिव निकला, तो जितना गुड्स, तो उसका एक वैल्यूएशन किया 5,000, तो उतना अमाउंट से कपिल का बैलेंस को हमने उसको रिबेट देकर उसको छूट दे दिया, छोड़ दिया, बात दिए दिए थे.
কেন গুডসটা এটুকু ডিফেক্টিভ ছিল, তাহলে এটুকু অ্যামাউন্টটা আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে রিবেট। तो बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली बल्क परचेज एंड सेल करते टाइम, होलसेल में जब परचेज सेल करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी का जब परचेज सेल करता है, तब ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसको माइनस करके नेट अमाउंट से एंट्री पास होता है, नंबर वन। दूसरा इज, number one is trade discount, number two is cash discount. Cash discount is when early payment is received or early payment is made, received from debtor, early payment is made to creditor. तो इन दैट केस अर्ली पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट मिलता है या देते हैं, रिसीव करते हैं, अलाउ करते हैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। सो अगर डेटर से अर्ली पेमेंट रिसीव हुआ है तो वी अलाउ कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, इसका एंट्री रिकॉर्ड होगा। एंड जब क्रेडिटर को अर्ली पेमेंट करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो वी रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, तो इसका एंट्री पास होता है। सो दिस इज कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट मेड, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर बल्क परचेज एंड सेल। So number one, trade discount. Number two, cash discount. Number three is rebate. Rebate means छोड़ देना, मतलब व्हाट सेंस में বাদ দিয়ে দিয়েছে, আর দিতে হবে না, ছেড়ে দিয়েছে অ্যামাউন্টটা, কারণ গুডসটা ডিফেক্টিভ ছিল। These goods were sold by charging IGST at the rate of 12%. Now, how do we pass? तो कैसे क्या एंट्री पास करें? ये जो रिबेट है, ये रिबेट बिजनेस के लिए क्या है? क्लासिफाई द अकाउंट। This rebate is what? Classify the rebate account as expense. So expense increase हो रहा है, डेबिट। सो rebate account डेबिट। rebate कितना का दिया? rebate का एक्सपेंस इज फॉर 5000। तो मेरे को बताओ, अगर अपने कपिल कपिल को रिबेट दे रहे हैं, तो कपिल से जो जीएसटी चार्ज किया था उसको भी क्या करना होगा? रिवर्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज अपने जब कपिल को सेल किए थे तो जीएसटी ऐड करके उसको इनवॉइस रेस किए थे, वो अमाउंट हम कपिल से पाते थे। अब जब कपिल को रिबेट दे रहे हैं तो तो 5000 पर जो जीएसटी है दैट विल गेट रिवर्स्ड। 5000 पर जीएसटी विल गेट रिवर्स्ड, है ना? बिकॉज वो जीएसटी अब कपिल से नहीं मिलेगा, तो वो जीएसटी को रिवर्स करना है। क्योंकि कपिल को अपने छूट दे रहे हैं, तो कपिल से जो जीएसटी मिलने का था 5000 के ऊपर, वो नहीं मिलेगा, तो उसको रिवर्स कर देना है। बोलो। कपिल के केस में इधर में वर्ड विल बी आउटपुट ना आउटवर्ड लिख लिया मैंने। सो बोलो, ये वाला जो आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी इसमें क्रेडिट हुआ था, यस और नो? तो अभी उसको रिबेट के टाइम रिवर्स करेंगे, तो आउटपुट जीएसटी को क्या करोगे? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। रेट कितना था? 12%। 5000 का 12% क्विकली 600। कपिल को रिबेट दे रहे हैं तो उस समझ में आ रहा है ना? हम्म।
तो उससे 5,000 जो जीएसटी, कपिल को जो बिल रेज किए थे वो जीएसटी लगा के रेज किए, तब कपिल को जब रिबेट दे रहे हैं तो वो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, कपिल से ये रिकवर नहीं होगा। तो कपिल क्यों भला 3,600 का जीएसटी पे करेगा? क्यों 3,600 का जीएसटी पे करेगा? नहीं करेगा। करेक्ट। रिबेट दे रहे हैं यानी कपिल को छूट दे रहे हैं, उसका अमाउंट को छोड़ दे रहे हैं, तो जीएसटी भी साथ में छोड़ना पड़ेगा। तो जो आउटपुट आईजीएसटी पहले क्रेडिट किए थे उसको रिवर्स कर देंगे डेबिट करके। 5,000 पर जीएसटी आईजीएसटी का रेट कितना था? 12%। तो 5,000 पर 12%, 600 का आईजीएसटी को अपने आउटपुट आईजीएसटी को रिवर्स करेंगे, अकाउंट को डेबिट करके, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 600। इधर में सेल्स रिटर्न क्यों नहीं? बिकॉज गुड्स रिटर्न नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न कब होता है? जब फिजिकली गुड्स भी आ जाता है। सेल्स रिटर्न मींस व्हाट? गुड्स फिजिकली वापस आ रहा है। इधर में गुड्स फिजिकली वापस नहीं आ रहा है, कपिल वो डिफेक्टिव गुड्स को चला रहा है। जैसे हम लोग ऑटो वाले का फटा हुआ नोट चलाते हैं, वैसे कपिल वो डिफेक्टिव गुड्स को चला रहा है, बट बोल रहा है क्योंकि गुड्स में कुछ डिफेक्टिव है तो पूरा अमाउंट मत लो, थोड़ा सा छूट दे दो। तो इधर में कपिल इज नॉट रिटर्निंग द गुड्स, देयर इज नो physical return of goods by Kapil to the business entity. So there is no sales return. So this is not a sales return. It is basically we are leaving 5,000, giving away 5,000 का रिबेट। तो ये 5,000 पर जो आईजीएसटी है उसको भी अपने रिवर्स कर देंगे, बिकॉज 5,000 का आईजीएसटी भी अपने को अब कपिल से क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। হয়েছে? ओके, दिस वाज इंपॉर्टेंट वन, रिबेट वाला चीज। रेडी? July 12, sold goods to Manpreet for rupees 1 lakh at trade discount 20%. So, minus करने के बाद 80,000 to sales account 80,000 to output IGST 80,000 का 12% is 9,600. So, entry is Manpreet account debit to sales account to output IGST. Very easy. Date is July 12. Manpreet account debit to sales account to output sales after trade discount is 80,000। 80,000 का what is the GST rate? 12%। So 80,000 का 12% is 12 8 za 96, 9,600। क्लियर है? Okay. Next, July 13, goods of list price rupees 20,000 returned by Manpreet। aha। अच्छा, ये जो लिस्ट प्राइस है, दिस इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? List price means what? This is the tag price which is visible to all. बट मनप्रीत को जब सेल किए थे तो सेल के टाइम उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था। यानी ये जो लिस्ट प्राइस है, टैग प्राइस, दिस इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? कैच करने का कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग और करेक्ट। लिस्ट प्राइस मींस व्हाट? इट इज अ टैग प्राइस। टैग प्राइस इज विजिबल टू ऑल, whoever is coming visible to all। रुको, विजिबल टू ऑल। बट जब मनप्रीत आया तो मनप्रीत पर बिजनेस का मन आ गया, तो मनप्रीत को बिजनेस ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का। तो ये मनप्रीत को सेल करते टाइम 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था, राइट? तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट किस पर मिलता है?
लिस्ट प्राइस पर, यानी ये जो लिस्ट प्राइस है दिस इज बिफोर और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो दिमाग में सेट कर लो, लिस्ट प्राइस इज ऑलवेज बिफोर, फिर से लिस्ट प्राइस इज ऑलवेज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, सो लिस्ट प्राइस इज ऑलवेज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 20%। सो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, 20,000 माइनस 20% इज हाउ मच, 16,000 ना। सेल आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ था, तो सेल्स रिटर्न भी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, वेरी ऑब्वियस। सेल्स अगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट तो सेल्स रिटर्न भी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल्स रिटर्न आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज 20,000 माइनस 20% ऑफ 10, 20,000 इज हाउ मच, टेल मी। 16,000 का सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न इनकम डिक्रीज डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट। सो इनकम को डेबिट कर रहे हैं तो साथ में आउटपुट आईजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। सेल जब करते हैं तो सेल के साथ आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न जब करते हैं तो सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होता है। सो एंट्री क्या बना, एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 16,000 का 12% इज हाउ मच, 1920। टू मनप्रीत अकाउंट कितना, 17,920। क्लियर है। जुलाई 13। सेल्स रिटर्न, व्हाट इज अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, ऑलवेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर सेल आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्स रिटर्न भी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न के साथ हमारा आउटपुट आईजीएसटी भी डेबिट होगा। तो 16,000 पर 12% इज हाउ मच, 1920। टू मनप्रीत अकाउंट 17,920। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 15,000 चार्ज्ड CGST SGST at the rate of 6% each। अच्छा, रिसीव्ड कमीशन इज इनकम और एक्सपेंस, इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सो कमीशन इन, राइट करेक्ट, दिस इज इनकम है तो दिस इज आउटवर्ड सप्लाई, एंड आउटवर्ड सप्लाई के केस में आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कमीशन रिसीव्ड इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो इसके साथ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST भी क्रेडिट। सो कमीशन रिसीव कर चुके हैं, रिसीव किया यानी अमाउंट मिल चुका है। कहां पर आया ये अमाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। हम लोग अगर आंसर में कैश अकाउंट डेबिट भी करते हैं तो भी करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा, बट वी प्रेफर बैंक ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस इन बैंक, टू बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम या टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट वट। कमीशन कितना का मिला, 15,000। कमीशन इनकम इंक्रीज क्रेडिट, commission received is income, outward supply, output CGST, output SGST,
इनकम को क्रेडिट किए हैं तो साथ में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दोनों क्रेडिट होगा। जीएसटी का रेट बताओ फटाफट। जीएसटी का रेट इज 6%। 15,000 का 6% इज हाउ मच? 900। सो इन टोटल कितना रिसीव किया हमने? 16,000। हाउ मच? 16,800। क्लियर है? The next and the last illustration of this unit journal entries, illustration 10। ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 10 में करेक्ट जर्नल एंट्रीज पास करना है। इलस्ट्रेशन 10। सो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल assuming CGST, SGST at the rate of 6% each. So by default, in this sum, all the transactions are for intrastate supply. Sold goods to, हाँ, अच्छा, पेज नंबर illustration 10। Record the following transactions in a journal assuming CGST and SGST at the rate of 6% each. Roman 1. Sold goods to Mukesh at the list price of rupees 50,000. List price, as we discussed in the previous illustration, it is always before trade discount. तो इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करके कितना आ रहा है? 40,000, यानी सेल 40,000 का हुआ है। तो एंट्री क्या होगा? मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। पास करो। यस। रेट ऑफ जीएसटी इज 6%। 40,000 का 6% इज। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। बस यहीं तक रीड करो। सो 1 लाख माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट इज 80,000, यानी 80,000 का सेल हुआ है। तो जर्नल इज मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। बाकी का 5% जो कैश डिस्काउंट है वो पेमेंट, अर्ली पेमेंट मिला है मुकेश से। अर्ली पेमेंट मिलने पर हमने बिजनेस ने मुकेश को डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड है। तो ये वाला जो चीज है कैश डिस्काउंट, ये मुकेश से पेमेंट रिसीव हुआ उसका है। तो इसको अपने अलग से पेमेंट के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करेंगे। वी विल नॉट क्लब।
अदरवाइज कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा. To have more clarity in our solution, we shall pass two entries in this case. First entry for first entry to record sale, the second entry to record payment received after cash discount. तो पहला एंट्री सेल का पास करो. पहले सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन मुकेश से पेमेंट रिसीव करने का एंट्री पास करेंगे. तो सेल के लिए एंट्री इज मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल कितना का हुआ है? 1 लाख आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट इज 80,000. टू आउटपुट CGST account. What is the rate? 6%. कितना आ रहा है बोलो? 4,800. 4,800. Now tell me what is the total amount? Tax invoice to be received, receivable from Mr. Mukesh is 89,000, 89,600. Perfect. 89,600 is the amount to be received from Mr. Mukesh. Now, he has made us the payment. He has made the payment. So 5% cash discount is allowed. So 89,600 is to be received from Mukesh. Mukesh has made the payment. So 5% cash discount is allowed. What is the amount of discount allowed? 89,600 ka 5% is 4,480. It is how much? 4,480. So discount allowed 4,480. Expenses debit 4,480. So after discount, what is the amount that has been received? Tell me. 89,600 minus 4,480. What is the amount received? Amount received is 85,120. Received in bank account debit. So who is the giver? Mukesh. Credit the giver. Mukesh has cleared his balance of 89,600. Next, Roman 3. Sold goods to Mukesh at the list price of rupees 1,50,000 less 20% trade discount. बस इसके बाद अपने पेमेंट का है तो वो अलग से एंट्री पास करेंगे. तो पहले सेल का एंट्री पास करते हैं. बोलो. सेल का एंट्री तो अब दिमाग में सेट हो चुका है. मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account to output SGST account. 1,50,000 less 20% trade discount is how much? 1,20,000. तो सेल्स 1,20,000 पर रिकॉर्ड होगा. इस पर 6% का CGST SGST. 1,20,000 का 6% is 7,200. So टैक्स इनवॉइस कितना का बना इंक्लूडिंग GST? 1,34,400. So 1,34,400 is the amount to be received from Mukesh.
तो मुकेश से मेरे को रिसीव, बिजनेस को रिसीव कितना करना है, मुकेश से बिजनेस को रिसीव कितना करना है, 1,34,400। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, व्हाट इज अमाउंट ड्यू, 1,34,400। 60%, 1,34,400 का 60% इज हाउ मच, 80,640 is received. Out of the amount due, what is amount due? 1,34,400. 60% is received. So how much is received? 1,34,400 का 60% is 80,640 has been received. Out of which, ये जो 80,640 रिसीव हुआ है, out of which 3/4, 80,640 का 3/4 निकालो, का 3/4 निकालो, how much? 60,480 is received by check. तो 80,640 में से 60,480 received by check, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,480 and the balance यानी 80,640 minus 60,480. 80,640 minus 60,480 is coming to how much? 20,160 is received in cash. 20,160 is received in cash. So cash account debit 20,160. समझ में आया? इसका नोट अपने खुद से बनाकर लिख लेना, राइट, घर में। हाँ, नहीं तो इसका कैलकुलेशंस के लिए एक वर्किंग नोट विल बी रिक्वायर्ड इन द एग्जाम व्हिच यू शैल डू इट बाय योरसेल्फ आफ्टर द क्लास। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना है? 60,480। ओके, बट क्लमजी हो जाएगा उसमें, ब्रैकेट्स में अगर बगल में करते हैं तो डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे ना। सो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 20,160। हु इज द गिवर? किससे पेमेंट रिसीव हुआ? हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर, मुकेश पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। सो हाउ मच इज रिसीव्ड? 60,480 plus 20,160 is 80,640। 60% रिसीव हुआ है ना, 80,640 रिसीव, सो मुकेश हैज गिवन गिवर 80,640 क्रेडिट। क्लियर है? नाउ 2 minutes. So we have solved each and every illustration of this unit chapter 2, chapter 2 accounting process, unit 1 journal entries का स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस 1 to 10 हमने क्लास में सॉल्व कर लिए, ऑल डन। तो अभी हमारा होम टास्क बिफोर द नेक्स्ट क्लास बिल्कुल करना ही करना है, बिल्कुल करना ही करना है, you should not skip it, is to solve practical question 1 to 5. There are 5 practical questions 1 to 5. ये अपने को नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 to 5 करना है। आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे और जहां डाउट है यू विल आस्क मी, आंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली कोई कंसेप्चुअल डाउट है तो यू विल गेट बैक टू मी, आस्क मी एंड क्लैरिफाई योर डाउट, राइट? क्लियर है? यस, आई डू सजेस्ट कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू शुड रिवाइज इलस्ट्रेशन 1 to 10 सो दैट जब अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें वी आर मोर कॉन्फिडेंट एंड फील हैप्पी दैट कि अपने से एक एक करके सॉल्व होते जा रहे हैं।
सो फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले यू रिवाइज इलस्ट्रेशन 1 to 10। क्लियर है? समझ में आज का क्लास? यस नो? क्लियर है? ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड जर्नल एंट्रीज का यूनिट। नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट लेजर, यूनिट 2 लेजर, चैप्टर 2 यूनिट 2 लेजर। चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।